का काम कर सकते हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हमें 6-8 MLA चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 MLA होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जो ये 90% को छुपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, एक आवाज से मिलकर ये काम करना पड़ेगा। और ये काम मैं आपके साथ करने वाला हूं। Good evening, ladies and gentlemen. You just heard how the opposition's call of vote jihad is now being countered with "Batenge to Katenge" bugle sounded by the BJP. The self-appointed crusaders of secularism have declared that India is fighting the divisive forces of the Saffron Brigade. On the other hand, you have the BJP. They have successfully orchestrated a counter-consolidation experiment in Haryana, breaking the shackles of the caste matrix. With this mantra, the BJP had defended their Haryana bastion for a third time. But will it work in Maharashtra as well? Watch these visuals of posters put up across 3 areas in Mumbai. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's picture is splashed with the slogan of "Batenge to Katenge." BJP leader Vishwa Bandhu Rai, who put up these posters, says that the North India model of Yogi will now consolidate Hindu votes in Maharashtra as well. Remember, Prime Minister Modi too had warned, "Batenge to baantne wale mehfil sajayenge." While the posters in Mumbai were removed, what really led to the call to unite Hindus? Remember, the Samajwadi Party's Maria Alam Khan gave the call for vote jihad. Today, her party boss Akhilesh Yadav says PDA Parivar bhi to nahi batega. This, of course, isn't surprising since the Samajwadi Party has entered the Maharashtra poll fray and declared 5 candidates already for it, even before the Mahavikas Aghadi can sign on the dotted line. All of them, coincidentally, are Muslim. Their alliance partners who cheer for the vote jihad call today slam what they call Gujarat-style divisive politics of the BJP. Watch the self-righteous attacks and you decide who's uniting and who's dividing India. आप कंफ्यूज मत होइए, ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा है। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था। उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? आता गुजरात स्टाईलची राजनीती म्हणजे काय? 2 समाजामध्ये वाद निर्माण करायचा, वहां पे हिंदू मुस्लिम करने का, ओबीसी मराठा करने का, उसमें वोट काट के अपना सत्ता लाने की बस। On the news hour tonight, let's decode the Muslim matrix. In the 2019 Maharashtra elections, there were 38 seats with over 20% Muslim population. Of these 38 seats, the BJP and the Congress won 11 each. The undivided Shiv Sena was close behind at 9 seats, followed by the undivided NCP at 3 and Samajwadi Party and the AIMIM at 2 each. This perhaps is the reason why the India Alliance relies on the vote jihad call. In 2024 UP Lok Sabha polls, India Alliance, powered by Akhilesh Yadav's PDA push, managed to get 92% of the Muslim votes, while the NDA managed to get only 2%. Nationally, in 2024 elections, the Congress got 38% of the Muslim votes, while their alliance partners got 27% of these
Muslims votes. So in all, the India Alliance managed to get 65% of the Muslim votes. The BJP got only 8%, 1% down from their earlier level in 2019, and its alliance partners got another 2%. So the NDA together only at 10% of the Muslim votes. This data shows who benefited from the divisive politics and who benefited from the counter consolidation. After all, Chief Minister Yogi Adityanath had said, "Batenge to katenge, ek rahenge to nek rahenge." You decide, will this call unite or polarize? So, ladies and gentlemen, the legitimate question we are asking on the News Hour tonight: will polarization continue to remain the only formula for elections? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. Watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now. Super Prime Time. And joining the debate tonight, Radhika Khera, national spokesperson of the BJP, Dr. Anand Ranganathan, author, scientist, political analyst, Tehseen Poonawalla Congress supporter, Anish Gawande, national spokesperson of the NCP, Sharad Pawar group, Mohammad Tariq Khan, national spokesperson of the Samajwadi Party. But my first question goes to Anand Dubey ji, spokesperson of the Uddhav Thackeray Shiv Sena. Anand Dubey ji, क्या दिन आ गए हैं? कभी सोचा था कि आप उस तरफ खड़े होंगे जहां मुसलमानों के वोट जिहाद की बात हो रही हो और उस तरफ से सवाल पूछ रहे होंगे कि हिंदुत्व और पोलराइजेशन का किस तरह से इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है? क्या ये आपकी मजबूरी बन चुका है? नविका जी नमस्ते। हम वहीं खड़े हैं जहां कल भी खड़े थे, वहीं खड़े हैं जहां आज खड़े हैं और कल भी वहीं खड़े रहेंगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी दूसरे धर्म के लोगों का हम अपमान करेंगे, दूसरे धर्म के लोगों के बीच में जाकर नफरत फैलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। जब भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के हिंदुओं ने वोट नहीं दिया तो 28 सीटें लड़के 9 पर आ गई। भारत के और महाराष्ट्र के जब मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया तो इन्होंने कहा कि ये लोग वोट जिहादी हैं। अब महाराष्ट्र का चुनाव है विधानसभा का, तो पोस्टर लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मुंबई की जनता इनको जवाब दे रही है, न बटेंगे न कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे क्योंकि आप बहुत जल्दी हटेंगे और आपके वोट घटेंगे। ये मुंबई की जनता इनको जवाब दे रही, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र की जनता समझ गई है इनका खेल। क्योंकि ये मुंबई जो है ये सभी जाति धर्मों के रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ सब बड़े मोहब्बत से, बड़े प्यार से रहते हैं। हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमको यही सिखाया है कि जो भी देशभक्त है, जो भी राष्ट्रभक्त है, जो भी राष्ट्रवादी सोच का है, वो हमारा हिंदू है। वो भले कोई भी धर्म का हो, लेकिन वो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलता है तो हिंदू समान है। ये बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए बीजेपी बेचैन है, विचलित है। कभी वोट जिहादी, कभी लव जिहादी, कभी कुछ और, लेकिन फिर जब डरती है तो कहती है 6,000 आनंद दुबे जी, वोट जिहाद का जो निजात हुआ था वो तो मरिया आलम खान ने किया था, वो तो समाजवादी पार्टी की है। आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं। मरिया आलम खान तो सलमान खुर्शीद, देवेंद्र फडणवीस जी कौन है? देवेंद्र जी कौन है? पर पहले लोकसभा चुनाव में पहले आया था वोट जिहाद या अब आया है? अरे पहले बाद में क्या होता है? देवेंद्र जी कह रहे हैं वोट जिहादी, पहले बात छोड़िए ना। देवेंद्र जी कौन है? गृह मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बीजेपी के सर्वे सर्वा हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि वोट जिहाद, लव जिहाद, दंगा फसा, कमाल है। ये शोभा देता है क्या एक सरकार में बैठे हुए आप कहें तो सत्यवचन और बीजेपी कहे तो बस डॉक्टर बाबा साहेब सिर्फ ध्रुवीकरण। आप कहें सत्यवचन, बीजेपी कहे ध्रुवीकरण। राधिका खेड़ा जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। कटेंगे तो भाजपाई, एक मिनट, राधिका खेड़ा, बटेंगे तो कटेंगे, इज दैट अ डेस्परेट अटेम्प्ट एज स्टेटेड बाय आनंद दुबे जी, और somewhere is the India Alliance being rather economical with the truth on who started the polarization games?
First of all, Mr. Anand Dubey here was talking about बाला साहब ठाकरे जी ने हमें ये सिखाया वो सिखाया। वैसे बाला साहब ठाकरे जी ने ये भी सिखाया था आनंद भाई कि मैं अपनी शिवसेना को कभी भी कांग्रेस का नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा, आई विल क्लोज शॉप। तो अगर आप इतना ही बाला साहब ठाकरे जी की बातों पे विश्वास रखते हैं और उनकी टीचिंग्स को आज भी मानते हैं तो आप लोगों को अपनी पार्टी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि साफ और कड़े शब्दों में उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शिवसेना का कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। और आप लोग तो कांग्रेस को बड़ा भाई मान के उनके आगे झुक के आज पैरों के नीचे बैठे हुए कि जैसा आप चाहेंगे जितनी टिकट आप देंगे हम लेंगे। तो प्लीज डोंट द differences and in what they say and what they do is starting from here. And now coming back to the topic, बटेंगे तो कटेंगे, तो बांटने का काम तो कांग्रेस पार्टी is been doing from time immemorial, right from the time when we got independence. Even then they divided the country. They are the ones who question the caste, the religion of the people of the country. It is the Congress party. You remember D.K. Suresh, who is the brother, who is a member of parliament from Karnataka. He is the brother of the biggest, tallest leader right now of Congress in Karnataka, D.K. Shivakumarji, who is also the deputy CM. He went on to say that we want a separate country. South India is a separate nation. We want a separate nation. This is how they divide on the basis of north, south, east, west. We've seen the remarks of Sam Pitroda related to the country. We've seen how the Telangana CM has talked about the DNA is different of south and DNA is different of the north. So they have continuously questioned the DNA of the people. They have questioned the caste. They've questioned the religion. Because they know one thing, कि जितना हम तोड़ेंगे, जितना हम divide करेंगे, उतना they will earn more money. But the Congress remains divided when they have to all get together and do corruption. And they will not fight, they will not divide, they will not question any religion, any caste when they have to make money in the states where they are in power. The minute they go out of power, they want to start questioning the caste, religion and the region also of the area. This is unfortunate for the country, for a party who is the oldest party of the country, and they have been doing that Rajniti from day one. And it is not just about Hindu and Muslim, Navika ji. It is about North and South. This is the biggest thing. The party which demands a separate nation for South. Well, separate nation is that a unifying agenda? That's a question raised by Radhika Khera. Tehseen Poonawala respond. Anand Dubey ji, coming back to you in just a minute, but Tehseen Poonawala. There has been a separate nation that has been demanded. And in fact, let me not go so far as a separate nation. Just 2 or 3 days ago, Rahul Gandhi in Jharkhand has made a statement saying, मुसलमानों का, he hasn't used the word मुसलमानों, but he has said, आप लोग बटेगा मत, आप लोग बटिएगा मत, तो हम इनको हरा देंगे. So if you say that, कि आप बट रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं, obviously you were referring, or he was referring to the minority vote bank. You know, if the BJP talks about the Hindus as a unit, why do you have a problem? Navika ji, thank you so much for having me on the show. Let me first clarify some things. It was said here that respected Bala Saheb Thackeray ji never supported the Congress. Bala Saheb Thackeray ji, while he was present amongst us, his Shiv Sena voted for Pratibha Patil ji. Pratibha Patil, you can see she's Maharashtrian. They voted for Pranab Da. He supported the emergency. You've covered that. Let's go to the second issue. Congress, Rahul Gandhi wants to divide the country. Accepted. This gentleman, I quote Times of India, on 17th October 2024 said, and I quote him verbatim, not only census, but caste census will happen soon. The gentleman is the Home Minister of the country, Shri Amit Shah. I'm quoting Times of India. He's also dividing the country. Prior to that, Rajnath Singh ji promised it. Prior to that, the late Arun Jaitley ji promised it. They were also dividing the country. They were in an alliance with Raj Thackeray, who used to beat up North Indians who used to come into India. The BJP, they were in an alliance with that. While they were in government, they proposed that, there should be permits to enter into Mumbai. We objected. We said, and Times of India has covered it, that are you going to have visas to come into Mumbai? This is the BJP. Today they are preaching to us. Look, the fact of the matter is, अगर कोई बटेगा और कोई काटेगा, तो देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? कोई काटेगा तो काटने की हिम्मत कैसे हो रही? So I understand that Amit Shah ji and Devendra Fadnavis ji are not competent as home ministers. Therefore, this election, one will go. In 2029, the second will go, and we will have peace in this country. One last thing, just for everyone to understand, just one last line. Minorities does not always mean religion.
Minorities can be a ton of things, including linguistic, sexual, etc. But when you're saying India should be united and somebody is saying a religion should be united, there's a division between the two. Please, keep these philosophical statements to yourself, Tehseen. When your own brother and a member of parliament from Karnataka actually has gone on and said that South India should be a separate country, please do not give us lectures on how to keep the country united. But Anand Ranganathan, is Tehseen Poonawalla preaching from the pulpit something that his own party does not believe or follow? गुड इवनिंग नाविक एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। अपने भाई तहसीन पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पहले मैं अपने दूसरे भाई आनंद जी जो मेरे नेम से क्या उस पे आऊंगा। उस पे मुझे एक जो आनंद जी ने कहा, बड़े प्रिय मित्र हैं, लेकिन मुझे एक पुराना गाना याद आ गया गाइड का। ये कह रहे हैं ना, बीजेपी पोलराइज करता है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट है और हिंदू मुस्लिम करता है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। क्या इनको याद है कि ये संजय राउत जी आई थिंक इन्हीं के शिवसेना के फैक्शन में हैं। 2015 में उन्होंने जो बाल ठाकरे जी ने कहा था वो बात रिपीट करी थी कि मुस्लिम्स की वोटिंग राइट्स को हटा देना चाहिए। मैं आनंद जी से पूछना चाहता हूं, क्या ये सच है और क्या वाकई मुस्लिम की वोटिंग राइट्स को हटा देना चाहिए? आनंद जी हाय ना में जवाब दीजिए, नाविका फिर मैं आप पे आता हूं। आनंद जी बताइए, आनंद दुबे जी कंडेम करते हैं? प्लीज रिस्पॉन्ड। भारत के मुसलमानों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संवैधानिक ताकत दी, अधिकार दिया मतदान करने का, उसको कौन हटाएगा भाई? किसने बात कही हटाने की? संजय राउत किसने हटाने की बात कही? न तो कभी बाला साहब ठाकरे जी ने कही, न कभी संजय राउत साहब ने कही। ये नया सगुफा कहां से लाते हैं आप लोग? आप लोग अफवाह बनाने की कोई मशीन रखे हैं क्या अपने पास? जहां अफवाह बनाइए, एक जगह से अफवाह डालिए, दूसरी जगह से निकालिए, लोगों को भ्रमित करिए। न रोजगार पर कोई बात करे, न विकास पर कोई बात करे, नाविका पढ़ लीजिए, बस लोग उलझे रहे। आनंद जी देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, फैक्ट्स आपके सामने रखे। ये देखिए, Please state the source. Please state the source so that Anand ji can check. The source is also ironically the Hindu. लेकिन आप कोई भी सोर्स लेना चाहे ले सकते हैं। तो आनंद जी प्लीज इस पे आप बात करिए। बट दूसरी बात नाविका, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। देखिए, आप ये बटेंगे तो कटेंगे, आप फ्रेज काफी पॉपुलर हो गया है पिछले 3 महीने में। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के केस में नहीं है। आयरॉनिकली जब योगी जी ने इसको पहली बार यूज किया था, वो बांग्लादेश के केस में यूज किया था। कॉन्टेक्स्ट वाज बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर बीत रही थी। उसके बाद ही जब वहां पे रिजीम चेंज हुई, उसके बाद ही योगी जी ने अपनी स्पीच में कहा था, देखिए ध्यान रखें, बटेंगे तो कटेंगे। और एकदम ठीक बात कही है उन्होंने। तो ये जो यूनिटी की बात कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, बीजेपी उनके बाद से हिंदू यूनिटी की बात कर रही है, इंडियंस की यूनिटी की बात नहीं कर रही है, हिंदू की यूनिटी की बात कर रही है, जो कि एकदम जायज है। बिकॉज जो मुस्लिम्स हैं वो टोटली यूनाइटेड है अगेंस्ट बीजेपी, चाहे जितना भी करे। और ऑन रिकॉर्ड तहसीन भी ये जानते हैं, इन लिविंग मेमोरी, इफ देयर इज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर दैट हैज डन मोर फॉर मुस्लिम्स देन एनीबॉडी एल्स, इट इज नरेंद्र मोदी। बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मुस्लिम्स उनको वोट नहीं करते। वो अलग बात है कि वो प्रोपेगेंडा और उसके नैरेटिव के तहत ऐसा होता है। लेकिन मैं हिंदू की यूनिटी पे आना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है, हिंदूज अगर बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं नाविका, कॉन्टेक्स्ट बीइंग बांग्लादेश, जहां योगी जी ने बात करी थी, कश्मीर में तो बटे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कटे ना। हिंदूज के पास नाविका वक्त बहुत कम है। आप प्लीज रियलाइज करिए। बीजेपी ये कब रियलाइज करेगी? 11 साल बीत चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हिंदूज को बांटा जा रहा है। वो सारे एक्ट जो हिंदुओं को काट रहे हैं, जो आरटी का कंजक्शन 93 के साथ हिंदू रन स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हिंदू टेंपल्स पे कंट्रोल चल रहा है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा हुआ है, वक्फ एक्ट लगा हुआ है, ये कश्मीरीज को वहां पे दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। हिंदूज कट रहे हैं।
बट नहीं रहे, हिंदूज कट रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली। तो मैं ये चाहता हूं, राधिका जी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, हिंदूज के पास ज्यादा टाइम नहीं है। राधिका जी, इन पे एक्ट करिए। बिल्कुल, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदूज को बटना नहीं चाहिए, एंड यू नो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द बीजेपी। ऑन द अदर हैंड, इंडिया अलायंस partners are going out and saying BJP is the only communal power in this country, and they are the unifying power, and the BJP is a communal power. But तारिक खान साहब, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, और पुरानी बात नहीं आनंद दुबे जी, विद योर परमिशन, बस कल परसों की बात है। ये अबू आजमी साहब क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, सुर और ताल और लय आपके भी समझ में आ जाएगी, सुन लीजिए। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। रिलीजियस लाइंस पर तो वोट मांगने भी नहीं चाहिए। इट्स अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। एंड व्हाट इज मिस्टर अबू आजमी सेइंग देयर, एंड हु स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम? तारिक खान भाई, Akhilesh Yadav ji standing next to him, saying 1 minute, he says मैं कौम के लिए करूंगा, और हमारे को आप 6-8 लोग और दे दीजिए, किसी में हिम्मत नहीं होगी हम पर हाथ उठा ले। क्या कह रहे हैं आप? Is this not communal? Is this not polarizing? And when you field 5 on 5 Muslim candidates, is that not communal? Is that not saying बटना नहीं बट बेटा? सवाल यह है कि करना सबने यही है, फॉर्मूला सबका डिफॉल्ट यही है, लेकिन नाम लेना तो बीजेपी इज द कम्युनल पार्टी, बाकी सब दूध के धुले हुए हैं। क्यों तारिक खान भाई? बीजेपी को ये एडवांटेज है कि वो कम्युनल ग्राउंड पे कुछ भी कह सकती है। अबू आजमी ने क्या कहा? नहीं, अबू आजमी ने क्या कहा? कम्युनल था? Was it secular? योगी साहब का स्टेटमेंट कम्युनल था, बटोगे कटोगे या नहीं। कॉन्टेक्स्ट अभी बताया आपको आनंद जी ने, बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट था, यहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट है? चुनाव का कॉन्टेक्स्ट है। प्लीज टेल मी। नो, ओके, योर क्वेश्चन ऑन योगी जी, आई विल आस्क राधिका खेड़ा टू रिस्पॉन्ड। प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन अबू आजमी स्टेटमेंट। अगर ये स्टेटमेंट योगी जी का कम्युनल है, उसके बाद मोदी जी ने से भी स्टेटमेंट दिया कि देश को जातियों के नाम पर मत बांटो। आप भी तो बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर को बढ़ा दो, तो जातियों की बात तो आप भी कर रहे हैं। जब वोट चाहिए तो जातियों की बात, और वैसे धर्म की बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप भी अबू आजमी ने जो बातें कही, अगर प्रधानमंत्री की बातें कम्युनल हैं, उससे पहले योगी जी कम्युनल ग्राउंड पे बातें करते हैं, तो अपनी कम्युनिटी से वोट मांगने में क्या दिक्कत है? अभी तो यही रंगनाथन साहब समझा रहे थे। अपनी कम्युनिटी से रिलीजन, well, objections coming in. Anand Ranganathan, is it fair to ask votes in the name of your community? दिस इज अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। प्लीज, ये क्या कह दिया आपने? नाविका, इसको एडिट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। नहीं, एडिट कैसे कर दूंगी मैं? नाविका, ये तो you know, the election commission should hear Tariq Khan today. The election commission should also take note of Abu Azmi. Where has the prime minister used any word of any community in his statement? He said अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसमें क्या है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? But Radhika Kheda, is what Abu Azmi is saying secular? Secular. Navika ji, the Samajwadi Party has mastered the art of dividing society, and we have seen that time and again from their statements, right from the time Ram Naam Satya Hai that Akhilesh Yadav said during the COVID era. Now here Abu Azmi, and they have continuously gone on to say these things, and here their spokespersons also saying the same thing, and they are questioning what Yogi Adityanath ji has said, what the Prime Minister has said. Well, of course, Prime Minister ने गलत क्या कहा है? बटेंगे तो
लोग खुशियां मनाएंगे, बिकॉज वी सीन राहुल गांधी गोज टू यूएसए एंड टॉक्स अबाउट कि देश में क्या डिवीजन हो रहा है. ही डज नॉट टॉक अबाउट इट इन इंडिया. ही डज नॉट वांट टू हैव अ प्रॉपर a healthy conversation here in parliament. He does not want to talk about it, but he will go to on American soil and talk about it. His leaders talk about कि north and south का DNA अलग है. His leaders talk about Hindu terrorism. He himself will go on and question a journalist, तुम्हारा religion क्या है, तुम्हारी caste क्या है. He will ask army people, तुम्हारा religion क्या है, तुम्हारी caste क्या है. He is going on to say कि भैया देखो कौन कौन बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस है, क्या कोई SC/ST एक्टर एक्ट्रेस है. ही इज गॉन ऑन टू से दैट आल्सो. ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट डिवाइडिंग पीपल ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन. तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा ना कि ये लोग, अगर आप लोग बटेंगे तो ये लोग महफिल सजाएंगे, बिकॉज वो महफिल सजाते ही है ये सब इंडिया अलायंस वाले. देयर मेन एम इज टू डिवाइड द नेशन ऑन एवरीथिंग दैट दे कैन फाइंड. एंड आदित्यनाथ जी ने भी क्या गलत कहा, बटेंगे तो कटेंगे. अगर देश बटेगा, नॉर्थ एंड साउथ में बटेगा, अगर देश धर्म के नाम पे बटेगा, हिंदू मुसलमान में बटेगा, किसी भी तरीके से बटेगा तो कटेंगे ही ना. और 75 years they were in out of 75 years 54 years the Congress was in power and they continued to divide the nation again and again, which is why they are standing by DK Suresh's remarks, they are standing by Telangana CM's remarks, they are standing by Sam Pitroda's remarks. उसे साउथ एंड नॉर्थ का DNA अलग है. नहीं, हर हिंदुस्तानी का DNA एक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी रीजन में रहता हो. बट नो, दीज पीपल वांट टू सजाओ महफिल क्योंकि बांटना चाहते, क्योंकि वैसे तो इनको कोई वोट दे नहीं रहा. एंड दे थिंक दैट व्हाट दे प्लेड इन द 2023 लोकसभा 2024 लोकसभा इलेक्शन, इट विल बी अ रिपीट ओवर हियर. नो, आई एम सॉरी, काट की हांडी एक ही बार चलती है. एंड यू हैव सीन दैट इन अ befitting reply from the people of हरियाणा, जिन्होंने इकट्ठा होकर वोट दिया. They wanted to do a Jat versus non-Jat, but they failed. The Jat community also voted for the Bharatiya Janata Party. The Yadavs voted, the Hindus voted, everybody voted. But I don't know if the same formula will work every time. We will have to, of course, wait and watch on 13th and 20th of November when the voters actually cast their votes. But let me also ask Anish Gawande. Anish Gawande, सवाल ये है कि वोट जिहाद सही है, बटेंगे तो कटेंगे कम्युनल है. अब वो आदमी अगर कहें कि मैं अपनी कौम के साथ खड़ा रहूंगा और मैं हमें 6-8 आप सीटें दे दे तो मुसलमानों के खिलाफ कोई आंख ना उठा सकेगा, ये कम्युनल नहीं है, ये सेक्युलर है. लेकिन जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनल है. ये किस तरह के डिस्क्रिप्शंस हैं? पहले अपने अंदर भी तो झांक के देखिए कि दोनों साइड का क्या फॉर्मूला कहीं सेम तो नहीं है. बिल्कुल नहीं. नाविका जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑन योर शो एंड आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल टू बी हियर. आई वांट टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि ये बटेंगे कटेंगे हैज बीन मेड इनटू फार टू बिग एन इशू. हु वाज पुटिंग अप विश्वबंधु राय's poster? Vishwabandhu Rai, who is a Congress leader who was dejected with the formation of the MVA and wrote to Sonia Gandhi, and when he got no attention he switched over to the BJP, and now to put attention onto himself again he's putting up these posters. So these political wheeler dealers with Canva accounts don't need to be paid attention to. Unfortunately, the reality is that there is a rhetoric and narrative of polarization that is being participated in by the BJP. Today, Devendra Fadnavis ji, unfortunately, someone I respect and admire deeply, is saying कि वो election की घोषणा नहीं, ऐलान कहते हैं. You have Madhvi Lata who wants to be organizing a Hindu Samman Yatra across the state. I want to say that if they want to put up a poster of Yogi ji in Maharashtra, why shouldn't they put up a poster of Yogi ji saying that UP gets triple the amount of funds of Maharashtra? Why shouldn't they put up a poster of Yogi ji saying that per capita income in UP is increasing at 12%, but Maharashtra is slipping from first place to 12th place in per capita income? When they are saying that Yogi ji's poster needs to be put up, why don't they say that UP has the highest increase in farmer suicides, which Maharashtra seems keen to follow with 1,200 this year? The only thing that is being reflected with Yogi ji's poster here, forget the batenge katenge, is this rhetoric of Gunda Raj which we've seen, which is being reinforced.
where you've seen 3 political murders in the state in this year, this rhetoric of discrimination and polarization is only helping the BJP, because you've seen a recent report that shows that the BJP's vote share in Muslim majority seats has increased in the 2024 Lok Sabha polls as compared to the 2019 assembly elections. And this description, this narrative, this rhetoric needs to be rejected because it helps nobody. Well, it helps nobody. I agree with you on that. I agree with you on that. Let me, I'm coming to you, Anand. आनंद दुबे जी से मैं पूछना चाहूंगी. आनंद दुबे जी, अबू आजमी सेक्युलर बातें कर रहे थे या वो बातें जो कर रहे थे वो कम्युनल थी? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी. क्योंकि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपके लैब में कौन सा टेस्ट चलता है, ये मैं जानना चाहती हूँ. कंफ्यूजन जो नाविका जी, मैंने सुना कि वो एक विशेष धर्म के लिए बात कर रहे थे, तो वो क्या बात कर रहे थे आपने भी सुना दिया सबको, तो उस पर कहूं क्या मैं नहीं समझ पा रहा. नहीं कहूं अबू क्या? आजमी कहूं क्या? इंडिया गठबंधन मतलब निशब्द हो गए आप निशब्द हो गए. सेक्युलर है इंडिया? नहीं सेक्युलर है कि नहीं? कह दीजिए ना कि ये सेक्युलर है. आप तो सर्टिफिकेशन एजेंसी है. अरे भाई मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो भाषण दिया मालेगांव में, उस पर मैं कहूं क्या? सवाल तो पूछिए. सवाल तो पूछ रही हूं. क्या कह रहे हैं? अरे आपने सुना दिया वो क्या कह रहे हैं? कितने मासूम हैं आप आनंद दुबे जी, इतने मासूम हैं आप कि क्या पूछूं आपसे. आपसे पूछ रही हूं कि ये सेक्युलर स्टेटमेंट था अबू आजमी का कि कम्युनल स्टेटमेंट था? बड़ा ही सरल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है. कम्युनल स्टेटमेंट था कि सेक्युलर? वही कह रहा हूं ना कि वो मुसलमान है, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे थे. सवाल क्या है ये तो पूछिए. ओ सवाल ही नहीं समझ आया. चलिए सवाल एक और पूछ लेती हूँ. शायद ये वाला सवाल आउट ऑफ कोर्स आ गया, तो मैं दूसरा सवाल पूछ लेती हूँ. ये स्टेटमेंट है कि 90% को छिपाया मिटाया जा रहा है. 90% में बहुत शक्ति है, सच्चाई आपके साथ है. ये काम मिलकर होगा, ये काम बंटने से नहीं होने वाला. ये काम मैं आपके साथ करने वाला हूं. जो ये 90% छिपाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, इनकी हिस्ट्री को खत्म किया जा रहा है. 90% में बहुत शक्ति है. अब ये सही है? ये सही है? 90% बता दीजिए. किसने कहा 90%? ये किसने कहा मैं बाद में बता देती हूँ ना. पहले आप ये बता दीजिए वक्तव्य सही है, कम्युनल है, सेक्युलर है? अरे भाई किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पूरा विवरण तो बताइए. चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा. चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जनता से वोट मांगते हुए. किस नेता ने कहा? क्यों उसके बाद डिसाइड करेंगे कि सही था या गलत? नाम से डिसाइड करेंगे. अब कमाल है, किस नेता ने कहा, कैसे कहा, अच्छा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा? मान लीजिए कि ये फडणवीस जी ने कहा, मान लीजिए. चलिए तो क्या कहेंगे, सही है या गलत? खंडन. नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में कहा? किस परिप्रेक्ष्य में? चुनाव के परिप्रेक्ष्य में. ये ट्रिक क्वेश्चन. अरे भाई 90% कौन दबे हुए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं. नहीं समझ पा रहे हैं? समझ ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, कौन दबा हुआ इस देश में? नहीं, इस देश में दबा कौन है, जरा ये समझना चाहता हूं. आज थोड़ा अज्ञानी हूं मैं, अबोध बालक हूं. कौन दबा हुआ है? अच्छा, तो फिर तो ऐसा है, वो दूसरे लीडर के पास जाना पड़ेगा जो समझाएंगे. क्योंकि ये बात कही है श्री राहुल गांधी जी ने, जिनके साथ आप सुबह शाम बैठते हैं, साथ रहने की कस्में खाते हैं. ये राहुल गांधी ने कहा है, झारखंड में कहा है, चुनावी रैली में कहा है. अब समझ आया कौन दबा हुआ है, किनकी हिस्ट्री मिट रही है? समझ आया? अरे तो हो सकता है कि उन्होंने किसी जाति वर्ग के लिए कहा हो, तो पूरा बताइए ना कौन दब गया है. 90% किसी एक जाति और एक वर्ग हुए हैं. आनंद दुबे जी, आपकी मासूमियत यही तो दिल छू लेती है. आनंद रंगनाथन जी जवाब दे दीजिए. नहीं देखिए नाविका जी, आप दबे हुए हैं, हमें उठाइए पहले. आनंद, देखिए आनंद जी इसीलिए मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं. अगले जन्म में अगर मैं आनंद बना तो मैं आनंद दुबे बनना चाहूंगा. एक तो इनको मोदक बहुत पसंद है,
तो ये मेरे लिए एडवांटेज होगी। लेकिन मैं आनंद दुबे जी पे अभी आना नहीं चाहता। मैं जो एनसीपी के आज उनका डेब्यू हो रहा है, कांग्रेचुलेशंस, ही मेड वेरी एरुडाइट कमेंट्स, बट आईड लाइक टू आस्क हिम, पिछली बार, अब ये शिवसेना के साथ इनका अलायंस है, वो भी उद्धव ठाकरे फैक्शन के साथ, पिछली बार ये सड़क पे आ गए थे एनसीपी वाले डिमांड करने के लिए कि अरेस्ट करो संजय राउत को, हल्ला गुल्ला करके पूरा असेंबली जो है तहस नहस कर दी थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब भी ये चाहेंगे कि संजय राउत को उनके मुस्लिम वोटिंग राइट्स हटा दी जाए, उस कमेंट पे अरेस्ट कर देना चाहिए? यस एंड नो सर, प्लीज रिस्पॉन्ड अनीश। संजय राउत जी के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट चलाया महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग द बीजेपी, सो आई रेज द सेम क्वेश्चन टू देम। ये जो महाविकास आघाड़ी है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है, वो कोई एक नेता पे नहीं चलती, किसी एक के विचारधारा पे नहीं। कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा। I again go back to my question which Anand Ranganathan, you have also not done justice to the question I asked Anand Dubey. 90% इनको समझ नहीं आ रहा था जब तक बीजेपी कह रही थी। राहुल गांधी का नाम लेती कह रहे हैं कि कौन दबा हुआ है इस देश में, तो कोई दबा नहीं हुआ है। राधिका खेड़ा जी, वैसे कोई दबा नहीं हुआ है इस देश में, लेकिन राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं तो आनंद दुबे जी के लिए दिक्कत, इतनी दिक्कत। देखिए राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि आनंद दुबे जी को तो समझ नहीं आ रहा। इंडिया अलायंस के लोग हैं और एक इसीलिए ना परेशान है ना, उन्होंने तो बहुत क्लोजली देखा है राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, ये भी कांग्रेस में थे मेरे साथ। लेकिन खैर, सी राहुल गांधी वेंट एंड आस्क्ड द मुस्लिम women who were there and he was talking about, if you've seen that video also, he went and told them कि we have to protect this book, we have to protect, but no one is protecting this book, and he was trying to instigate them to say that the BJP was against the constitution and the BJP was not protecting the constitution, and those women in return replied to Rahul Gandhi and said that the BJP is protecting the constitution, which was a tight slap on the face of Rahul Gandhi, who again tried to create a false narrative amongst the Muslim women. The Congress party has again and again categorically, right from the time of Dr. Manmohan Singh ji to Rahul Gandhi, have always said that the Muslims are oppressed and that someone is trying to oppress them further. And their alliance partner, the Shiv Sena, like Anand Bhai said, that Bal Thackeray Sahab was absolutely against Muslims getting voting right, and Sanjay Raut ji in Samna wrote a note in 2015 and it was all over the place. It is there in the Samna, ताल से ताल मिलाते हुए कि मुसलमानों से उनकी वोटिंग राइट छीन लेनी चाहिए. So the two part ऐसा होता है जब parties which have different ideologies but just for the lust of power and just to earn money and do corruption इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आएगी और ना वो उनकी तरफ जा पाएंगे ना ये कर पाएंगे. एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है. उद्धव ठाकरे जी उधर जा रहे हैं, नाना पटोले उधर जा रहे हैं. I don't think any political party can take the moral high ground on corruption, so let's leave corruption out of the equation. But Tehseen Poonawalla, the statement of Rahul Gandhi before I end this debate, I want to ask you and put a hand on your heart to say, when he says 90% में बहुत शक्ति है, सच्चाई आपके साथ है, ये काम मिलकर होगा, ये काम बंटने से नहीं होगा, तो वहां बंटने वाला आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सही है? बटेंगे तो कटेंगे में. Absolutely correct. Don't interrupt me. The only people in this country who perpetrate violence to gain politically is the BJP and its allies. Look at what Akhilesh Yadav ji proved in Bahraich today. Look at what happened in Bahraich. Who was FIR filed against? They are filed against those who are workers working in the BJP to incite violence. And Abu Azmi? Paragon of secularism? Their minister, I'll tell you. The fact of the matter is, their minister R.K. Singh ji has said that there is some violence in this country, and he is today a minister in BJP. He's not taken a statement back. The BJP incites violence. यही चाहते कि लोग बटे और कटे ताकि पावर में आए. Tehseen Poonawalla, sometimes it's called the syndrome of an ostrich burying its head in the sand. काट के फेंका था दिल्ली में. Sorry? और आप बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कटने की बात करती है. कांग्रेस पार्टी ने सिखों को काट के फेंका था. डू यू नो द सिचुएशन, द राइट्स, द सिख राइट्स इन दिल्ली, किस तरीके से काट के फेंका था? आई हैव फैमिली मेंबर्स हु वर, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स वाज द फर्स्ट थिंग टू बी अटैक्ड
Well, ladies and gentlemen, who can take the moral ground on secularism, the high moral ground? Well, on both sides, there are enough examples of crossing of the red lines, but election times. Yes, polarization is the only formula that seems to work for all times, all seasons, all states, all elections, whether it is Abu Azmi of the Samajwadi Party or it is the BJP. Are we ever going to see an election fought on any other issues? Well, we are waiting. Despite 77 years of independence, we are waiting for that morning to actually arrive. वो सुबह कभी तो आएगी. We leave it at that. Thank you very much to all my panelists for joining me on debate number 1.